Why it is a sentence and not a statement? Why x plus 3 is greater? x की वैल्यू अननोन है. Yes, because you don't know कि x का value क्या. Unless you know the value of x, you cannot say कि whether the given sentence ये true है या false है. x का value कुछ भी हो सकता है ना. I can put x का value as -1. Then in that case -1 plus 3 कितना हो जाएगा? 2. 2 is not greater than 9. So unless you know कि what is the value of x, you will not be able to say whether it is true or false. जब आप x की जगह पे value put कर दोगे, then -1 plus 3 greater than 9, ये फिर ये true है या false आप बता सकते हो. तो जब आप बता सकते हो कि true है या false है, then that becomes a statement. I'm sorry. And how many unknowns were there in this sentence? Only one, so that is why I'm denoting it by p of x. Okay, is this clear? अगर मैं x plus y greater than 2 लिख दूं या equals to 1 लिख दूं, whatever, इसके अंदर कितने unknowns है? Again it is a sentence because you don't know what are the values of x and y. इसे हम क्या कहते हैं? So it is just a predicate. Okay, so इसे हम जो unknowns होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Predicate variable. What do we call it as? We call it as predicate variable. Right or not? इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? p of x, y से डिनोट करेंगे. नोटेशंस क्लियर है कि जब हम ऐसे लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? ये स्टूडेंट्स? यस मैम. Yes. ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रुथ सेट. ट्रुथ सेट क्या होता है? व्हाट इज ट्रुथ सेट? सारे अभी truth आएंगे. अभी मैंने p of x equals to x plus 3 greater than 9 लिखा है. तो इसमें मैं x का वैल्यू पुट करूंगी. ओके, सपोज x का वैल्यू मेरे कुछ वैल्यूज के लिए मुझे क्या मिल रहा है? ये प्रेडिकेट फॉल्स मिल रहा है. कुछ वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा. तो जो वैल्यू के लिए हमें फॉल्स मिलेगा वो कंसिडर नहीं करोगे. तो जो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ये स्टेटमेंट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा. ऑल दोस वैल्यूज वी आर गोइंग टू टेक टुगेदर एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द ट्रुथ वैल्यू और गिव्स द ट्रुथ सेट ऑफ द गिवन प्रेडिकेट. समझ में आया ट्रुथ सेट क्या होता है? सो वो सारे वैल्यूज आप वेरिएबल के लोगे जिसमें हमारा प्रेडिकेट क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है. And we did one question also in that on that in the last class. Okay, so here comes the first question for today's class and which you are going to solve it. Okay, what is the predicate given to us over here? Tell me. Predicate क्या दिया? Let us see the solution of this. चलो बताओ predicate. Question read करो. Let p of x be the predicate that x is greater than 1 by x. अब कोई भी नंबर लो, वो नंबर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा उसके रेसिप्रोकल से. ऐसा ये स्टेटमेंट, ऐसा प्रेडिकेट है, ऐसा सेंटेंस है. ओके, दैट एनी यू टेक एनी नंबर, its reciprocal will always be smaller than the given number. What is the first question? Write p of 2, p of half, p of -1, p of -half, and p of -8, and indicate which of these statements are true and which are false. Can you all solve this? How will you do this? Come on, speak up, students. Substitute value 2, half, -1 Correct. and In then place x. of x. तो पहले तो हम predicate लिख देते हैं. What is the predicate given to us over here? We are given predicate p of x, that is x is greater than 1 X is by x. ये greater हमारा than 1 predicate है. इसके अंदर unknowns कितने? Only one. That is why we have denoted it by p of x. हम statement कैसे denote करते हैं? We denote statement by p, q, r, no. But इसके अंदर unknown से है तो हम किसे denote करें? p of x से denote करते हैं. ना अभी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? p of 2 कैलकुलेट करो. तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे. तो what I will get? 2 is it 2 greater is than 1 greater by than 2? 1 by ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? वैल्यूज पुट कर दिया. false. True, sir. तो ये हो गया ट्रू. ओके, नेक्स्ट. अभी हम क्या पुट करेंगे? x की जगह पे हाफ. तो हाफ पुट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट? हाफ पुट करो x की जगह पे, व्हाट यू विल गेट? False. व्हाट शुड आई राइट? फॉल्स. तो बता रहे हो, लिखूं क्या मैं इधर? Half Half is greater than half. हाफ ग्रेटर देन Half. हाफ आएगा. 1 upon तो half. इधर x है और इधर 1 by x. जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है. तो 1 by 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 by 1. हाँ, तो 2 by 1 is nothing but 2 only ना. Yes. करेक्ट. Yes. So miss. half is greater than 2. ये समझा? हाफ ग्रेटर देन 2 कैसे हो गया?
because Yes, ma'am. one Yeah. side is x, other side is the reciprocal of it. So 1/2 is on the left hand and उसका reciprocal 2 हो जाएगा. क्या half greater होता है 2 से? No. No. No, so it is false. Okay, I hope this is clear to all of you. Next, अभी क्या put करोगे x की जगह पे? -1. Minus 8. 1. So what you will get? Left side क्या आएगा? -1. -1 on the right is side will be greater than reciprocal of -1. -1 reciprocal of greater than -1 will 1. be correct. हाँ, प्लस हो जाएगा क्या? नेगेटिव का रेसिप्रोकल लोगे तो नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो -1 ही आएगा, राइट? ये ट्रू है कि फॉल्स है? False. False. Yes, this is false. Absolutely right. So we also false. Next, thank you. P of -half क्या हो जाएगा? -half is greater than -2. Absolutely right. -half greater than -2 हो जाएगा. बताओ ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? True. It's True. true. Absolutely correct. Yes. Next हम क्या निकालेंगे? P of -8. P of -8 क्या हो जाएगा? -8 is greater than -1/8. Absolutely right. ठीक है, कितने समझदार हो मेरे बच्चे. तो -8 greater than -1/8. ये बताइए ट्रू या फॉल्स है? True or false? Absolutely right. So आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कौन से वैल्यूज के लिए हमें ट्रू मिल रहा था बच्चों? जरा ऑब्जर्व करो तो. अगर मैंने नंबर 2 लिया तो 1 लिया तो ट्रू होगा क्या बच्चों? इफ आई टेक 1 विल इट बी ट्रू? इफ आई टेक 1 Yes, ma'am. 1 के लिए ट्रू होगा क्या? फॉल्स मिलेगा बिकॉज 1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो 1 के लिए ट्रू नहीं होगा. फिर हमने 2 लिया तो 2 के लिए तो ट्रू मिला. 3 लिया तो ट्रू मिलेगा क्या? 3 लिया तो इफ आई टेक x वाले 3, अगर मैं प्रेडिकेट में x की जगह पे 3 पुट करूं तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? Yes. यस रिया, करेक्ट. ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, राइट? सो डोंट यू थिंक सो कि मैं अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लूं, इफ आई टेक एनी वैल्यू x का, सॉरी, इफ आई टेक वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1, हर एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए मुझे वो स्टेटमेंट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा कि True. नहीं? यू ऑल एग्री विद दिस? चलो Yes, कोई भी ma'am. नंबर ले लो. आप Yes. मुझे कोई भी नंबर दे दो. आप मुझे कोई भी नंबर दे दो व्हिच इज ग्रेटर देन 1. कैन आई टेक x का वैल्यू 1.5 आल्सो? ग्रेटर देन 1 है ना? यस और नो? Yes. Yes. प्रेडिकेट में पुट करते हैं. प्रेडिकेट में पुट करेंगे. व्हाट आई विल गेट? 1.5 ग्रेटर देन 1/1.5. वैसे 1.5 क्या होता है? 3/2 होता है ना? अब बताओ ये कितना होगा? क्या 1.5 ग्रेटर है 1/1.5 से? 1.5 1/1.5 कितना हो जाएगा? आई थिंक ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना? तो अभी दिख रहा है कि ये आंसर ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? समझ में आ रहा है अभी? ये 1.5 है, इधर Yes. 0 पॉइंट समथिंग True आएगा. होगा. तो ये is also True, true. so no matter 0.6 what आएगा. value you take, whether you take decimal numbers or you take any integer value, उसके लिए हमें क्या मिलेगा? प्रेडिकेट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा. इफ आई टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1. ओके, व्हाट इफ आई टेक x इक्वल्स टू -2? x इक्वल्स टू -2 के लिए मैं प्रेडिकेट मतलब बेसिकली आई वांट टू से कि व्हाट इफ आई टेक वैल्यू लेसर देन 1? चलो x का वैल्यू -2 ले False. लेते हैं. फॉल्स मिलेगा. ओके, लेट्स सी. सो -2 हो जाएगा. -2 इज ग्रेटर देन -1/2. नो, दिस इज फॉल्स. सो मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या पाया कि अगर हमने एक भी वैल्यू x का लेसर देन 1 लिया, जैसे -2 ले लिया मैंने इधर, तो मुझे हर एक के लिए क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा. करेक्ट? नो? यस और नो? बट x अगर मैंने ma'am. x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिया तो क्या मिलेगा मुझे? ट्रू मिलेगा. ये दो केस समझा आपको? इफ आई टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मुझे प्रेडिकेट क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है. और इफ आई टेक एनी वैल्यू लेसर देन 1 तो मुझे प्रेडिकेट क्या मिलेगा? अब वो आप बोलोगे कि आपने तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए चेक किया. आप कोई भी वैल्यू ले लो ना, जरूरी है कि मैंने -2 लिया तो अभी माइनस. आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप चेक करो कि प्रेडिकेट ट्रू या फॉल्स है. फॉर ईच वैल्यू लेसर देन 1 यू विल गेट द प्रेडिकेट फॉल्स. अब बचा कौन सा केस बच्चों? लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 का केस तो डिस्कस हो गया. बचा कौन सा केस? 0.
0.5 लिया तो ओके, लेस देन 1 में 0.5 लेस देन 1 है ना। 0.5 के लिए जरा चेक करो तो ये सेटिस्फाई करेगा क्या? 0.5 मतलब कितना होता है? हाफ होता है ना, हाफ होता है ये। क्या हाफ ग्रेटर देन 2 होगा? नहीं, इसके लिए तो फॉल्स मिला था, तो मतलब ओके। और कौन सा वाले के लिए भी ट्रू मिला था? माइनस हाफ के लिए भी ट्रू मिल रहा था, ओके। तो अभी क्या कंक्लूड कर सकते हैं? So don't you think so if I take any value between -1 to 0, है ना, अभी 0 से 0 1 के बीच में अभी आपने चेक किया कि 0 to 1 के बीच में अगर मैंने कोई भी वैल्यू लिया तो उसके लिए भी फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इफ आई टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 0, माइनस हाफ इसके बीच में लाई करता है कि नहीं? माइनस हाफ किसके बीच में लाई करेगा? -1 और 0 के बीच में। अब भी आपने देखा है कि माइनस हाफ के लिए मेरा स्टेटमेंट क्या है, हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो बेसिकली व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग ऑल दीज? पे अटेंशन। So why I was doing all these true हो रहा है, false हो रहा है, इतने सारे values मैंने क्यों लिए? I'll just explain that. Okay. So see the question number 2. Question number 2 क्या बोल रहा है? What is the question number 2? Find the truth set of P of X if the domain of X is R, the set of all real numbers. तो रियल नंबर के कौन कौन से वो नंबर्स होंगे जो हमारे प्रेडिकेट को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझा, ए पार्ट समझा? आप सभी को ए पार्ट कैसे किया हमने? ए पार्ट समझा तो हम आगे बढ़े, समझा मैं। ठीक है। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बी पार्ट, ओके। इफ आई विल गो फास्ट नो, जस्ट लेट मी नो, सो आई विल स्लो डाउन माय स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट इज इसमें जस्ट आपको एक्स जगह पे वैल्यूज पुट करने थे और ट्रू और फॉल्स बताना, तो दैट वाज वेरी इजी पार्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग द फाइंड द ट्रुथ सेट ऑफ p of x if the domain is R। डोमेन हमें क्या दिया हुआ है? डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। अभी हर एक रियल नंबर के लिए आप चेक करते बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारा जो प्रेडिकेट है, हमारा प्रेडिकेट क्या था? x ग्रेटर देन 1/x। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए ना, इधर से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वाले के लिए ट्रू मिल रहा है। ट्रू किसके लिए मिल रहा था? 2 विच वाज ग्रेटर देन 1। x का वैल्यू क्या था? ग्रेटर देन 1 था। और किसके लिए ट्रू मिला? इसके लिए ट्रू मिला। तो इसके लिए ट्रू मिला, ये क्या था? -हाफ, मतलब ये 0 2 और -1 के बीच में लाइक है। सो इफ आई टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन केस 1, अगर मैं डिस्कस करूँ, इफ आई टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो मेरा प्रेडिकेट क्या होगा? ट्रू होगा। आपने अब भी चेक किया, कोई भी वैल्यू ले लो, मेरा प्रेडिकेट क्या मिलेगा? हमेशा p of x will always be true। ओके, ट्रूथ सेट नाम डालना। ट्रू सेट मतलब क्या? कौन कौन से वैल्यू के लिए प्रेडिकेट क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। केस 2 क्या हो रहा था हमारा? अगर हमारा x 0 और 1 के बीच में लाइक किया तो क्या मेरा प्रेडिकेट ट्रू होगा? हम हर एक केस डिस्कस करेंगे। 1 से ग्रेटर लिया x का वैल्यू, तो हर एक वैल्यू के लिए क्या करेगा? ये केस 1 समझा आपको? डिड यू अंडरस्टैंड द केस 1? तो हम केस 2 की तरफ जाएंगे। केस 1 समझा? केस 1 में क्या कर रहे हैं हम? कोई भी वैल्यू ले लो x का which is greater than 1, हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? ट्रू होगा। जस्ट चेक करो कि हो रहा है क्या ट्रू। जस्ट चेक करो। टेक x इक्वल्स टू 0.5, क्या ट्रू हो रहा है मेरा प्रेडिकेट? हम कुछ वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। False। false x फॉल्स हो रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। x का वैल्यू, मैंने क्या बोला कि x फॉर x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 में 1.5 आएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक। ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा? 1.5 आएगा। तो मेरा प्रेडिकेट ट्रू है क्या 1.5 के लिए? तो क्या हो जाएगा? 1.5 ग्रेटर देन उसका रेसिप्रोकल 1/1.5। ये कितना होता है? 1.5 ग्रेटर देन 1/1.5 का आंसर क्या आएगा? 0. आगे क्या लिखेंगे? 0.06 समथिंग है ना, 0.0। इज इट ट्रू? 5 आएगा कि 6 आएगा? दोनों 6 आएगा आई गेस। 6 आएगा मैं। इज इट ट्रू? 0.6 इज इट ट्रू? 0.06 आएगा। 0.06 आएगा। जस्ट चेक वंस। आई थिंक इट इज 0.06 या फिर 0.6 है।
0.6 है मैम. 0.6 है. Yes मैम. So 0.6, तो ये ट्रू है क्या? यस इट इज ट्रू. तो बेसिक तो चलो एक्स वैल्यू अब ले लेते हैं, सपोज 10 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम. तो क्या इसके लिए भी ट्रू होगा क्या? प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? 10 ग्रेटर देन 1/10. इज इट ट्रू? Yes. So no Yes. matter what value you take for x which is greater than 1, उसके लिए हमारा प्रेडिकेट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा. यूज योर ब्रेन, थिंक अबाउट इट. ओके, जितना सोचोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, आपका ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करेगा. ओके, सो ये हमने x का वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लेंगे which is greater than 1, तो हमारा क्या होगा? ट्रू होगा. केस 2 डिस्कस कर लेते हैं. हम ट्रूथ सेट फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, ट्रूथ सेट के तो कौन कौन से वैल्यूज के लिए हमें क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है. सो इधर से हमको क्या मिल गया ट्रूथ सेट में? भी फिलहाल के लिए क्या मिल गया ट्रूथ सेट में? ट्रूथ सेट क्या हो जाएगा अभी? तो इफ यू टेक एनी वैल्यू, 1 के लिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 1 इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे. एंड 1 क्या गया? कितना भी नंबर ले लो, सारे वैल्यू से सेटिस्फाई करे, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? इंटरवल 1, आ जाएगा. ये इंटरवल कैसा है? 1, समझा क्या? बिकॉज देयर आर x ग्रेटर देन 1, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज. नो स्टूडेंट्स, यस और नो कि आप काउंट कर सकते हैं कि मैम इतने ही वैल्यूज होंगे जो हमारे प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे? नो, x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी. तो बहुत सारी वैल्यूज को आप सेट में नहीं लिखते, आप इंटरवल का हेल्प लेते हो, इंटरवल में लिखते हो. तो इंटरवल में कैसे लिखते हो? ऐसे लिखोगे. व्हाई डिड आई पुट ओपन ब्रैकेट एंड नॉट क्लोज ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट डालते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता था? सिर्फ 1 और इन्फिनिटी काउंट होता. ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है बच्चा. अगर मैं क्लोज ब्रैकेट डालती तो 1 भी काउंट होता था, बट हमको पता है कि 1 के लिए तो मेरा प्रेडिकेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना. यस और नो? 1 के लिए मैं प्रेडिकेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड 1. सो सारे वैल्यूज 1 और सारे वैल्यूज ग्रेटर देन 1 के लिए मेरा प्रेडिकेट क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है. इसका मतलब सिर्फ ये दो वैल्यूज नहीं है इसके अंदर, 1 टू इन्फिनिटी में तो दो ही वैल्यू नहीं है, उसके बीच में बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, बहुत जो आप काउंट नहीं कर सकते. तो सारे वैल्यूज के लिए क्या होगा? मेरा प्रेडिकेट ट्रू हो रहा है. गॉट इट? नाउ केस 2 व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, आई जस्ट स्क्रॉल डाउन. केस 1 क्लियर है आप सभी को कि कैसे हमको ट्रूथ सेट मिला? केस 2 डिस्कस करते हैं. व्हाट इफ आई टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1? 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लिया, सपोज 0.5 ले लिया, तो क्या मैम एक प्रेडिकेट बार ट्रू केस होगा? 1 फिर से बताओ ना. हाँ ठीक है ठीक है. केस 1 हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बताओ राहुल, व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन केस 1? हम रियल नंबर. रियल नंबर नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या वो बोल रहा है? लिसन टू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? वी हैव टू फाइंड ऑल दी ट्रूथ सेट. ओके, ट्रूथ सेट मतलब क्या? ऑल दोस वैल्यूज व्हिच आर सैटिस्फाइंग आवर प्रेडिकेट. हमारा प्रेडिकेट क्या था? x ग्रेटर देन 1/x है. तो कौन कौन से वैल्यू होंगे जो हमारे प्रेडिकेट को ट्रू बना रहे हैं? ठीक है, और जो हमें डोमेन क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ रियल नंबर. हमें डोमेन क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ रियल नंबर. और रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर तो इनफाइनाइट सेट है. तो क्या आप हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते बैठोगे? नो. नो. तो बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इफ आई टेक एनी वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लूं, ये जो प्रेडिकेट है उसमें अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं, ठीक है, इफ आई पुट x, एक मिनट तो ओके, इफ आई पुट x की जगह पे 1 ओवर हियर, एक सेकंड स्टूडेंट. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर ये जो प्रेडिकेट है हमारा, पे अटेंशन. ओके, अगर मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो क्या मेरा प्रेडिकेट सेटिस्फाई करेगा? प्रेडिकेट सेटिस्फाई होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या? नो मैम. नो. तो मतलब मैं x की जगह पे वैल्यू 1 पुट नहीं करता, तो मतलब मेरे ट्रूथ सेट में 1 तो डेफिनेटली नहीं आएगा. राइट? नो, 1 ये डेफिनेटली नहीं आएगा बिकॉज 1 के लिए मेरा प्रेडिकेट ट्रू नहीं है. तो चलो ठीक है, 1 मत लो. अभी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 ले लो. ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा? 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा. राइट? नो, 1.5 भी आएगा. सो जस्ट फॉर सिंपलिसिटी नो, x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? 1.5 ले लिया. कैन यू सी ओवर हियर? मैंने x क्या ले लिया? 1.5. जस्ट
फॉर इजी कैलकुलेशन। तो फिर हमने प्रेडिकेट कैलकुलेट किया P ऑफ 1.5, तो क्या मिला हमको 1.5 ग्रेटर देन 1/1.5 होता है क्या? यस। तो मतलब ये सारे वैल्यूज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 1.5 क्यों लिया? सो दैट कि आपको पता चले कि वो डेसिमल वैल्यूज के लिए भी ट्रू हो रहा है, दैट इज व्हाई पर्पसली टुक 1.5। अब 2 भी ले लो, क्या 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा प्रेडिकेट? बताओ, 2x की जगह पे अगर 2 रखा तो प्रेडिकेट सेटिस्फाई होगा? Yes, sir. यस। Yes. 2 रखा तो भी सेटिस्फाई होगा, 2.5 रखा तो सेटिस्फाई होगा। चेक करो 2.5 क्या ग्रेटर देन होता है 1/1.2.5 से? x की जगह पे 2.5 रखो। Yes, sir. यस, True. स्टिल इट इज ट्रू, करेक्ट। ओके, सो जरूरी नहीं कि ये एक आध वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, कोई भी वैल्यू ले लो ग्रेटर देन 1 के लिए। आप 100 ले लो, देखो 100 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो 100 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 100 ग्रेटर देन 1/100 है? यस। Yes, Yes. ma'am. 1000 भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। नो मैटर व्हाट वैल्यू यू टेक ग्रेटर देन 1, सारे ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? ट्रू हो रहा है। सो बट 1 पे सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए हमारा फर्स्ट केस में ट्रूथ सेट क्या बना? हमको फर्स्ट केस में ट्रूथ सेट क्या बना? पेन नहीं दिख रहा है मुझे। तो फर्स्ट केस के लिए हमारा ट्रूथ सेट क्या हो जाएगा? अभी बहुत सारे नंबर्स हो गए ना, बहुत सारे नंबर्स को हम इंटरवल में लिखते हैं ना। डू वी टेक सेट में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते हो, राइट? नो, जो आप काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम इंटरवल में लिखते हैं। तो इंटरवल में आप कैसे लिखोगे? 1, ∞, 1 इंक्लूड नहीं करोगे, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट रखा है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं क्लोज ब्रैकेट डाल दूंगी तो एक्सट्रीम वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाएंगे, और क्या होंगे? अलॉन्ग विद दी बिटवीन नंबर्स। तो इनके बीच में 1 to ∞ के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स के लिए हमारा प्रेडिकेट ट्रू होगा, बट 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए 1 हमने इंक्लूड नहीं किया है बाय पुटिंग ओपन ब्रैकेट। अभी समझाओ ट्रूथ सेट राहुल? मैम मैंने नहीं पूछा। अच्छा, किसने पूछा था? साकिब, तुमने पूछा था क्या? No, ma'am. ओके, हु वाज दैट पर्सन? आदित्य? मैम मैं था, समझ में आया। ओके सचिन, ओके नाउ यू अंडरस्टूड नो। सो आप कोई भी वैल्यू ले लो 1 से ग्रेटर, जो ग्रेटर रहेगा उसके लिए हमारा प्रेडिकेट सेटिस्फाई होगा। तो ये केस 1 में मिला हमको ट्रूथ सेट। लेट अस चेक इन केस 2। केस 2 में हम क्या ले रहे हैं? व्हाट इफ आई टेक वैल्यूज बिटवीन 0 and 1? 1 पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो तो पता चल गया। 1 से ग्रेटर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी पता चल गया। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इफ आई टेक नंबर बिटवीन 0 and 1? तो चलो देख लेते हैं 0 1 के बीच में अगर मैंने वैल्यू लिया तो क्या हो रहा है। टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1। मैंने क्या ले लिया इधर? 0.5. 0.5 ले लिया, तो 0.5 ले लिया। अब प्रेडिकेट में पुट करो, क्या हो जाएगा? क्या 0.5 ग्रेटर देन 1/0.5 होता है? False है। 0.5 मतलब आई थिंक हाफ होता है। क्या हाफ ग्रेटर है इसके रेसिप्रोकल, मतलब 2 हो जाए? False. False तो है। ये फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो एक और वैल्यू ले लो, 0 और 1 के बीच में एक और वैल्यू ले लो। 0 1 के बीच में एक और वैल्यू ले लो। 0 1 के बीच में एक भी वैल्यू नहीं पता क्या आपको? 1.1 1/7. 1/7 कितना होता है? क्या वो 0 और 1 के बीच में आता है? 0.7 ले लूं क्या? ऐसे ले लेता हूँ थोड़ा, 1/7 को फिर 1 और 7 को डिवाइड करूँ। 0.7 ले सकते हैं क्या? 0 1 के बीच में आता है क्या 0.7? Yes, ma'am. Yes. तो ठीक है, तो अभी प्रेडिकेट पे पुट करो, क्या हो जाएगा? क्या 0.7 ग्रेटर देन 1/0.7 होता है? False है। कितना आता है इसका वैल्यू? 1.4 ऐसा कुछ। 14 1.4 समथिंग। वो एग्जैक्टली बोलो ना कितना आता है? 14 है, 1.14। 1.14 ना? 1.42. क्या है, 4.2 है कि 4.1 है? 4.2 है सर। 4.2. It is 4.2. Okay, so this is false. So what you observe? So what did you observe over here? आप मुझे अपना ऑब्जर्वेशन बताओ। 0 to 1 जो भी numbers है सब false है.
हाँ, तो 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, आपके लिए प्रेडिकेट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ट्रूथ सेट में आएगा क्या ये वैल्यू? क्या 0 to 1 के बीच में कोई भी नहीं। वैल्यू ट्रूथ सेट में आएगा? नहीं No. आएगा, कोई भी वैल्यू ट्रूथ सेट के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये मेरा मशीन थोड़ा हैंग हो गया वापस से, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट केस जरा कंसिडर करो। व्हाट इफ आई टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 0? -1 to 0 के बीच में अगर मैंने नंबर्स लिए तो क्या हो रहा है, देखो। एक सेकंड, तो चल बसा। स्टूडेंट्स -1 to 0 के बीच में चेक करो जरा। फॉल्स आया। आएगा तो 0 आएगा बहुत सारा। फॉल्स आ रहा है, -1 to 0 के बीच में भी फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा वो। कोई भी वैल्यू ले लो, -1 और 0 के बीच में जो वैल्यू आए, -0.5 ले लो, -0.6 ले लो, -0.7 ले लो, टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 0 एंड चेक करो कि क्या ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ट्रू आ रहा ट्रू है। है। 0 तो हम ले नहीं सकते बिकॉज 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट? नो, तो 0 वी कैन नॉट टेक। -1 ले सकते हैं क्या? -1 के लिए ट्रू हो रहा है? नो मैम। -1 के लिए भी ट्रू False नहीं होगा, है। बट नहीं, तो -1 के लिए फॉल्स है, 0 भी हम नहीं ले सकते हैं, बट वी कैन टेक वैल्यूज बिटवीन -1 to 0। तो अब बताओ, -1 to 0 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? -1 से लेकर 0 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, बताओ जरा। इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होते हैं। तो कैसे लिखोगे अभी इतने सारे वैल्यूज को? राउंड ब्रैकेट में डाल के। यस, राउंड ब्रैकेट में डाल के। व्हाई नॉट क्लोज ब्रैकेट? बिकॉज फिर 1 and 0 भी इंक्लूडेड होगा। तो हाँ, और हमको पता है कि उसके लिए वो ट्रू नहीं है, तो ट्रू सेट में भी क्या आ जाएगा? -1, 0 आ जाएगा। वेरी गुड। What if I take value lesser than -1? If I take any value lesser than -1, वो केस भी कंसिडर करो। चलो, if you take any value lesser than -1, तो उसके लिए क्या हो रहा है प्रेडिकेट? Take any value lesser than -1, कोई भी वैल्यू ले लो -1 से, फॉल्स। उसके लिए क्या? फॉल्स आ रहा है। तो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए कि नहीं? कोई और केस रह गया है जो हमने डिस्कस नहीं किया? रियल नंबर के साथ, जो भी रियल नंबर हमको पता है, पूरा नंबर रियल लाइन होता है, जो सारे केसेस ले लिए। >1 भी ले लिया, 0 to 1 के बीच में भी ले लिया, 0 to -1 के बीच में भी ले लिया, और -1 से लेकर भी ले लिया। तो सारे केस हमने ले लिए। तो ट्रूथ सेट क्या बन रहा है अभी? What has got stuck? ट्रूथ सेट बताओ स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? ट्रूथ सेट क्या हो जाएगा? अभी इतनी रामायण, इतना आधे 15 मिनट से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ट्रूथ सेट क्या बन रहा है वो बताओ। Student system has got hanged. Just wait for a minute.